Hello, Assalamu alaikum friends. My name is Hussain Laghari, and as you know, we are delivering classes of various subjects regularly. Today is our third lecture as whole of biology and class number two as per the course sequence. So Miss Aisha Nadeem is here and she will deliver her lecture on biology. So I would like to ask Miss Aisha Nadeem to start her lecture. Aisha, are you there? Okay. Yes, sir. I'm here. Okay, okay. We can start now. Okay. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are fine. First of all, Jummah Mubarak. May you have a blessed day ahead. So, uh, yesterday we have discussed about the first lecture of class first year, Introduction to Biology, in which we have studied the introduction, the main branches, the divisions, and the other things that were included in the chapter. Today is our second class that is about the biological molecules from the chapter number 2 in class first year. So yesterday I have already told you that if you have any confusions regarding the topic, so you may comment down there. So we will definitely respond you and will clear your every confusions. So let's move to the topic. So, sir, can you please move to the next slide? Okay. So, today our main topic is biological molecules. So, first of all, we should know what are biological molecules. The biological molecules is a chemical compound found in living organisms. तमाम हम जानदारों के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो हमारे सेल्स को बनाते हैं, उन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं. And these biological molecules are already composed of six bio elements. There are approximately six vital elements there called bioelements जिनको हम living organisms में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस. So these six are the bioelements that are found and that are combined to form a single biological molecule. इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में और इन तमाम एलिमेंट्स में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाइटल मैं कहूँ अगर एलिमेंट है तो वो कार्बन है, क्योंकि कार्बन एक बड़ी अहमियत रखता है. कार्बन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है तमाम चीज़ों में, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखते हैं तो ऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनिक कहलाती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो मेन एलिमेंट पाया जाता है वो कार्बन ही है. सो बेसिकली वी कैन से दैट the biological molecules are those molecules which contain carbon as a basic element. बेसिक एलिमेंट के तौर पे अगर कार्बन किसी मॉलिक्यूल में पाया जा रहा है और डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है. नेक्स्ट स्लाइड सर. All right. So we have four main biomolecules that are categorized on the basis of their structures, functions, and many other things. So basically, the four major types of biomolecules are carbohydrate, lipids, nucleic acid, and proteins. So here you can see a table that is showing the basic structures of these molecules. Here it is lipids, the nucleic acid, the carbohydrate, and the proteins. These four are the major and basic, I can say, molecules of living organisms that combinedly form a cell and organelles of the cells. So, sir, can you please move to the next slide? Okay. So basically, the human body is composed of roughly 30 trillion cells that collectively perform the essential functions of life. The cells can perform these life-sustaining tasks with the help of several organic molecules present in them.
These organic molecules are referred to as biomolecules. So basically अगर एक आप देखा जाए तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली ह्यूमन बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है. 30 ट्रिलियन सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, तमाम सेल्स मिलकर हमारी पूरी की पूरी लाइफ की एक्टिविटीज को चला रहे हैं या कंटिन्यू करके रखा हुआ है. ये सेल्स खुद जिन मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं जो कि इस सेल्स की एक्टिविटीज करवाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं. और वी कैन आल्सो रिफर टू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज बायोमॉलिक्यूल्स. So let us see what are the organic molecules. Basically, organic molecules are those which contain carbon hydrogen bonds. As I told you that in organic molecules there is a element called carbon that is the basic element directly bonded with the hydrogen. तो organic molecule basically हम उस molecule को कह सकते हैं जिसके अंदर कार्बन पाया जाए और वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए. So there are majorly 4 types of organic molecules. Number 1 is carbohydrate, protein, lipids, and nucleic acids. So there is a table. You can see that the table is showing the small biomolecules and the macromolecules. Now, what is the difference between small biomolecules and macromolecules? Small biomolecules, as you can see, हम तमाम के तमाम जानदार जैसे छोटे छोटे सेल्स के मिलके बने हुए हैं. हर बड़ी चीज जो होती है ना वो किसी ना किसी छोटी चीज से या छोटे यूनिट्स से मिलकर बनी हुई हो सकती है. we can say कि some micro units when combined that form a macro molecule or macronutrient, anything we can say. कोई भी अगर छोटे छोटे यूनिट्स अगर कंबाइन होते हैं तो वो एक मेजर या कोई बड़ी सी चीज बनाता है. तो स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली 4 हैं, लाइक शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स. ये 4 स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि मेजरली तौर पे बहुत सारे कंबाइन होते हैं तब जाकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बनता है. सो यू कैन सी हियर दैट शुगर्स व्हेन कंबाइंड टू फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट्स, fatty acids combine to form lipids, amino acids combine to form proteins, and the nucleotides are combined to form a nucleic acid. So basically बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स जो है वो जब कंबाइन होते हैं तब जाकर वो कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. फैटी एसिड्स भी आप कह सकते हो कि स्मॉल यूनिट्स हैं जो कि मिलकर लिपिड्स बनाते हैं. अमाइनो एसिड्स छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं. और न्यूक्लियोटाइड्स भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो मिलकर न्यूक्लिक एसिड्स बना रहे हैं. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो 4 चीजें हैं, यानी ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, जब ये मिलते हैं तब जाकर एक लार्ज या मैक्रोमोलिक्यूल बनता है. तो हमारे अंदर बहुत सारे स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि मिलकर बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं. नेक्स्ट. All right. So here is a table that is showing the process of condensation and hydrolysis. So what is condensation and what is hydrolysis? As I have told you कि बहुत सारे माइक्रो यूनिट्स या छोटी छोटी चीजें मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाती हैं. तो उस माइक्रोमोलिक्यूल्स का मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल बनाना और किसी मैक्रोमोलिक्यूल का टूटकर छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में तब्दील हो जाना, इन दोनों प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेसेस जो है ना मिलकर एक कंबाइनली स्टेट में काम करते हैं. कि अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में है और हमारी बॉडी को उस मॉलिक्यूल को तोड़ना है, उससे एनर्जी हासिल करनी है या XYZ कोई भी काम करना है, तो वो उस प्रोसीजर में क्या करेगा, सिंपली बहुत सारे जो है ना हम कह सकते हैं कि एक मैक्रोमोलिक्यूल को छोटे छोटे मोनोमर्स में तोड़ेगा. जबकि अगर किसी बहुत सारी छोटे छोटे यूनिट्स से कोई बड़ी चीज बनानी है, लाइक वी कैन से कि एक बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है, तो उसके लिए हमें उन माइक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है. So let us discuss about the condensation. What is condensation? Basically, condensation हम एक प्रोसीजर को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स मिले और एक पॉलीमर बनाए. और इस प्रोसीजर में एक चीज जो बहुत नेसेसरी है, जो एनी हाउ होती है, दैट इज द रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. लाइक अगर कोई भी 2 मोनोमर्स
कंबाइन होकर कोई पॉलीमर बना रहे हैं तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर दो मोनोमर्स कंबाइन होंगे और पॉलीमर में तब्दील हो जाएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको सिंपली दे सकती हूँ कि लाइक अगर एक मोनोमर है और एक और मोनोमर है, दोनों मोनोमर्स में से एक मोनोमर में से HO यानी कि HO का रिमूव होना जरूरी है, और एक मॉलिक्यूल एक मोनोमर से हाइड्रोजन का रिमूव होना जब बहुत जरूरी है। जब एक मोनोमर से OH और एक मोनोमर से H कम निकले रिमूव हो जाएंगे तो वो कंबाइन होके बना लेंगे H2O, दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो H2O यानी वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके एक कंप्लीट, या हम कह सकते हैं एक पॉलीमर बना लेंगे। तो सिंपली द मोस्ट इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन इज we can say that the combining of monomers to make a polymer and the removal of water from it, this is called condensation। तो condensation में बेसिकली एक एग्जांपल नीचे हम मेंशन है कि अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक मैक्रोमोलिक्यूल बना लेते हैं जिसका पॉलीमर बना लेते हैं, जिसको हम सक्रोज कह सकते हैं। और ऑन द नेक्स्ट हैंड देयर वी हैव हाइड्रोलाइसिस। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? बेसिकली हाइड्रोलाइसिस हम कहते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कंडेंसेशन में मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बना रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस में पॉलीमर टूट रहा है मोनोमर्स में। सो बेसिकली रिवर्स प्रोसीजर है दोनों का। तो हाइड्रोलाइसिस में बेसिक काम क्या हो रहा है? ब्रोकन डाउन या ब्रेक डाउन हो रहा है किसका? पॉलीमर्स का। किस में हो रहा है? मोनोमर्स में। तो पॉलीमर्स का मोनोमर्स में टूटना विथ एडिंग ऑफ वाटर। लाइक अगर वहां पे क्या हो रहा था कंडेंसेशन में, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा बिल्कुल ही उसी रिवर्स तरीके से। दोनों मोनोमर्स के अंदर एक मोनोमर में OH ग्रुप ऐड होगा, एक में H ग्रुप ऐड होगा। तो जब OH और H ऐड हो जाएगा तो एडिशन ऑफ वाटर के बाद एक पॉलीमर टूट जाएगा मोनोमर्स में। So basically hydrolysis is a procedure in which a polymer is broken down into monomers by the addition of water. This is one of the most simplest, I can say, definition of hydrolysis. So here we have a example of hydrolysis that is showing कि starch अगर टूटता है तो basically starch एक ऐसा polymer है जो कि 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अगर स्टार्च को हम तोड़ें तो वो 3 मोनोमर्स में टूटेगा। तो ये एक हाइड्रोलाइसिस हो गया। लाइक अगर एक पॉलीमर है जो कि टूट रहा है मोनोमर्स में तो वी कैन से कि ये एक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन हम सिंपली किस चीज को कहते हैं? जिसमें रिमूवल ऑफ वाटर हो। तो कंडेंसेशन प्रोसेस में रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, इसीलिए वी कैन आल्सो से दैट दिस इज एन डिहाइड्रेशन प्रोसीजर। So these both are the basic procedures that combine and that broke down the biomolecules। तो बेसिकली कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का एक बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी चीज को बनाने में या किसी भी चीज को तोड़ने में। तो मॉलिक्यूल्स का बनना टूटना दोनों का दोनों डिपेंड करता है इन दोनों प्रोसीजर पे दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट। All right. So here we have our very first biomolecule, that is protein. So yes, we have already studied the basic introduction of biomolecules, that what are biomolecules and what are the basic things. So now we are starting the very first biomolecule that we have is protein. तो जो सबसे पहले प्रोटीन को नाम दिया गया था, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो स्वीडिश थे, केमिस्ट थे, और उनका नाम था जॉन्स जैकब बर्जीलियस। उन्होंने 1838 के अंदर सबसे पहले प्रोटीन के मॉलिक्यूल को एक नेम दिया। सो वी दैट इज नाउ कॉल्ड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बेसिकली है क्या? Proteins are polypeptide structures consisting of one or more long chains of amino acid residues. So protein basically एक polypeptide structure है। polypeptide structure हम किसको कहते हैं? वो structures जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बना लें। तो अगर अमीनो एसिड की एक या एक से ज्यादा चेन्स अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स
कि एक या एक से ज्यादा चेन जब कंबाइन होती हैं तो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाती हैं। और ऑलरेडी हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तब जाकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स की चेन्स कंबाइन होंगी तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। So basically प्रोटीन का काम क्या है? They carry out a wide variety of organisms functions including DNA replication, transporting molecule, catalyzing metabolic reactions and providing structural support to cells. तो बेसिकली प्रोटीन्स के बहुत सारे मेजर फंक्शंस हैं, वी कैन से बहुत सारे एट अ टाइम। प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला एक बायोमोलिक्यूल है जिसके बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं अलग अलग जगहों पे, और अलग अलग तरीके से प्रोटीन अपने अहम रोल अदा कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। लाइक डीएनए का रेप्लिकेशन होना और मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, किसी भी मेटाबॉलिक फंक्शन का कैटलाइज होना या मतलब किसी भी मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैटलाइज करवाने वाले कौन है? बेसिकली एंजाइम्स हैं। सो एंजाइम्स खुद भी प्रोटीनियस होते हैं नेचर में। इसके अलावा प्रोटीन का काम है हमारे सेल्स को एक पर्टिकुलर शेप देना, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देना, सपोर्ट देना। तो प्रोटीन एट अ टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंट फंक्शंस एक ही वक्त में, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। So basically, there are approximately 22 amino acids combined together by peptide linkage or bond to form a molecule of protein. प्रोटीन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स के यूनिट्स मिलते हैं तब जाकर प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो जो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट प्रोटीन होगा वो एटलीस्ट 22 अमीनो एसिड्स से मिलकर बना हुआ होगा। 22 छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के यूनिट्स जब कंबाइन हो, और आपको पता है कभी भी कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या दो डिफरेंट चीजें आपस में कंबाइन होती हैं तो उनको कंबाइन होने के लिए उनके दरमियान एक बॉन्ड होना जरूरी है। तो अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन में पाए जाते हैं, लाइक अगर ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है, इनको कंबाइन होने के लिए इनके दरमियान में एक बॉन्ड होना जरूरी है जो इन दोनों को आपस में लिंक करेगा या कंबाइन करेगा। उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 22 अमाइनो एसिड्स जब पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो एक कंप्लीट प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो गया है, यानी प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया है। तो 22 अमीनो एसिड्स अगर हम देखें, सिंपलेस्ट प्रोटीन है कोई, बहुत सिंपलेस्ट प्रोटीन, उसके अंदर भी कम से कम 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। सो फर्दर वी विल डिस्कस टू द व्हेन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। All right. So here you can see that how amino acids combine and form a long chain that will convert into protein. So basically आप यहाँ पर एक कलरफुल छोटे छोटे स्पेरिकल बॉडीज देख रहे हैं। ये क्या है? ये अमीनो एसिड्स के यूनिट्स हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप, अमीनो एसिड्स के यूनिट्स जब एक लॉन्ग चेन में अरेंज हो रहे हैं, लॉन्ग चेन किसके? लॉन्ग चेन में मैंने आपको बताया कि दो अमीनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो उनके दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज होना कब जरूरी है ताकि दोनों अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो सके। तो ये जो छोटे छोटे कलरफुल अमीनो एसिड्स हैं, ये एक लॉन्ग चेन जब कंबाइन हो जाते हैं, उस लॉन्ग चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एक प्रोटीन का पूरा कंप्लीटली मॉलिक्यूल बनाती है। सो बेसिकली व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन? पॉलीपेप्टाइड चेन हम कह सकते हैं एक अनब्रांच्ड चेन है अमीनो एसिड की, जो कि आपस में बहुत सारे जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड्स को जोड़ के रख रही है। अगर आप इसमें देखें, यहाँ पर एक लॉन्ग चेन जा रही है बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स की जो कि आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स जो कि मिलकर प्रोटीन बनाए, उस लॉन्ग चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज मौजूद हो। ओके, नेक्स्ट। So here we have the structures of protein. Basically स्ट्रक्चर्स कौन बनाता है किसी भी चीज का? अगर कोई चीज बनी हुई है और स्पेशली वो जिस चीज से बनी हुई है, लाइक अगर हम है, हमारे जो बेसिक यूनिट है वो हम कहते हैं कि द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ अवर्स इज सेल। तो सेल्स बहुत सारे मिलते हैं तब जाकर एक कंप्लीट जो है ना, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार बनता है। तो उसी तरीके से प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है वो क्योंकि छोटे छोटे अमीनो एसिड्स से मिलकर बना हुआ है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं
कि असल काम या असल स्ट्रक्चर किसका है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का, सॉरी। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। पॉलीमर आपको बताया मैंने, पॉलीमर और मोनोमर में क्या फर्क है कि पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल है, मोनोमर्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर बनता है। तो प्रोटीन एक खुद पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, अमाइनो एसिड्स का, और अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। So you can see there is a chemical structure of amino acids. This is a chemical structure of amino acids. As you can see that there is a carbon present in the center. इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं बेसिकली, जो यहाँ पर दरमियान में मौजूद है, जिसके ऊपर आर मौजूद है। आर क्या है बेसिकली, आर हम कहते हैं रेडिकल ग्रुप को, जो कि हर अमाइनो एसिड के अंदर चेंज होता है। अमाइनो एसिड्स बहुत किस्म के हैं, जैसे प्रोटीन डिफरेंट किस्म के होते हैं, उसी तरीके से अमाइनो एसिड्स भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अंदर डिफरेंट रेडिकल ग्रुप पाया जाता है। तो ये जो आर है, जो ग्रीन से सर्कल में आप लोगों को मेंशन हो रहा है, इस आर को हम रेडिकल ग्रुप कहते हैं, जो कि हर अमाइनो एसिड्स में वेरिएबल है, यानी कि चेंज होगा। इस कार्बन के जो नीचे वो एक हाइड्रोजन का एटम लगा हुआ है। राइट साइड पे अगर आप देखो तो NH2 है, N है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो NH2 बेसिकली हम NH2 किसका मॉलिक्यूल है, अमाइनो ग्रुप कहते हैं NH2 को हम। और अगर आप इस तरफ को देखेंगे कार्बन के, तो यहाँ पर आपको COOH अगर आपको नजर आ रहा है बेसिकली, तो COOH को हम कार्बोजाइलिक एसिड या कार्बोजाइलिक ग्रुप कह सकते हैं बेसिकली। तो एक कंप्लीट अमाइनो एसिड्स के अंदर 4 चीजें आपको एनी हाउ मिलेंगी। जो दरमियान में जो मेन चीज है दैट इज अल्फा कार्बन। कार्बन से जो जुड़ा हुई चीज है वो है रेडिकल ग्रुप, जो कि हर अमाइनो एसिड में वेरिएबल यानी कि चेंज होगा। एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरी तरफ कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है। तो ये जो 4 चीजें, ये बेसिक चीजें हैं जो एक मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाती है। केमिकल फॉर्मूला जिसको आप केमिकल स्ट्रक्चर आप जिसको कह सकते हो। तो प्रोटीन्स को पढ़ने के लिए आपको अमाइनो एसिड्स का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट, all right. So here we have the very main or 4 structures of protein. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स क्योंकि अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के। तो बेसिकली देयर आर 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन वी कैन से। नंबर 1 is primary structure, number 2 is secondary structure, number 3 is tertiary structure, number 4 is quaternary structure. सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स की एक लॉन्ग चेन हो, जो कि अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे यूनिट्स मिलकर एक लीनियर सीक्वेंस में लॉन्ग चेन बनाए। इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी है। प्राइमरी स्ट्रक्चर की पहचान ही यही है कि अमाइनो एसिड्स की और जो आई मीन टू से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो लीनियर सीक्वेंस में, और लीनियर सीक्वेंस हम कहते हैं लाइक सीधा धागे की तरीके से एक सीधी सी लीनियर सीक्वेंस में अरेंज हुए हुए अमाइनो एसिड्स और सीधी सी एक धागेनुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं पॉलीपेप्टाइड की। तो हम देख के उसको पहचान सकते हैं कि क्योंकि ये लीनियर है, लाइक सीधा है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पाया कहाँ जाता है? इंसुलिन में पाया जाता है। अब नाउ व्हाट इज इंसुलिन? बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन है दैट इज प्रोड्यूस बाय पैंक्रियास। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पैंक्रियास? पैंक्रियास एक आप कह सकते हो कि एक ग्लैंड है एक तरीके से, जो कि हार्मोन्स सिक्रिएट करता है। अब कौन पैंक्रियास का जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो इंसुलिन है, और इंसुलिन वो हार्मोन है जिसका काम है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखना। लाइक अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज हाई हो रही है तो ये इंसुलिन का काम क्या है? उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाना या उस ग्लूकोज को कम करवाना। जिसके अंदर भी इंसुलिन हार्मोन बनना अगर बंद हो जाए, या वी कैन से कि अगर उसके अंदर कोई डिसऑर्डर आ गया है कि उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा, तो उस पर्सन को डायबिटीज हो जाती है। वो डायबिटिक पेशेंट कहलाता है क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा। इंसुलिन का काम ग्लूकोज को कंट्रोल करना है ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में यहाँ से इस तरह हाई चला जाएगा। ग्लूकोज का ब्लड में बढ़ जाना, वी कैन से दैट कि इस पर्सन को अब शुगर हो गई है या इस पर्सन को अब डायबिटीज हो गई है। तो बेसिकली इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर रखता है प्रोटीन का।
The second one is secondary structure. The secondary structure of protein is the long chain of amino acid formed spirally coiled. सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं? प्रोटीन की एक लॉन्ग चेन हो लेकिन स्पाइरली कॉइल्ड हो. स्पाइरली कॉइल्ड हम किसको कह सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो इस तरीके से लाइक जिगजैग मैनर कह लो, या एक तरीके से स्पाइरली कॉइल्ड कोई चीज हुई हुई है, उस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं. तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? प्राइमरी में प्रोटीन की लॉन्ग चेन होगी और सेकेंडरी में उस वही प्रोटीन की चेन स्पाइरली कॉइल्ड हुई हुई है. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया कहाँ जाता है? बेसिकली मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमारे हेयर्स में मौजूद है, स्पाइडर वेब में मौजूद है. जो मकड़ी का जाला होता है, अगर आप उसके जाले को गौर करेंगे तो वो भी स्पाइरली लाइक इस तरीके से जो है ना अरेंज हुआ हुआ होता है. तो क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. द थर्ड वन इज टर्शरी स्ट्रक्चर. टर्शरी स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं? दिस स्ट्रक्चर arises from further folding of the secondary structures of the protein. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम कहते हैं स्पाइरली स्ट्रक्चर को. लाइक अगर चेन स्पाइरली कॉइल्ड हुई हुई है, वही चेन्स जब आपस में कंबाइनली स्टेट में पाई जाएं, स्पाइरल हुई हुई सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो प्रोटीन की चेन्स हैं, अगर वो आपस में मिलकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए या एक स्ट्रक्चर बनाए, उसको हम कह सकते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर. तो टर्शरी स्ट्रक्चर को आप सिंपली कह सकते हो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाली चेन जब मजीद फोल्ड हुई भी हो तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाए, उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं. तो टर्शरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल में आता है लाइसोजाइम. अब लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि हम अपकमिंग अपने लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे कि व्हाट आर लाइसोजाइम बेसिकली. लाइसोजाइम के बाद एक हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. अब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हम किस चीज को कह सकते हैं? सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chain referred to as subunits. The special arrangement of subunits with respect to each other is known as quaternary structure. प्रोटीन, कोई भी अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो जिसमें एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाएं और आपस में वो बिल्कुल एक नेटवर्क की शक्ल में अरेंज हुई हुई है, एक नेटवर्क हम कह सकते हैं, एक उलझा हुआ सा एक जाल, इस तरीके की अगर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिक्स हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं. और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बेसिकली पाया जाता है हीमोग्लोबिन में. नाउ व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है. अब ऑक्सीजन को कहाँ कैरी करता है, ये मौजूद कहाँ है? हमारी बॉडी के अंदर जो मेन आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने वाला जो सिस्टम है या जो मीडियम है वो ब्लड है. तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं. उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है ना इनरिच अमाउंट में, वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है. हीमोग्लोबिन प्रोटीन का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करता है और देन वो रेड ब्लड सेल एक जगह से दूसरी जगह जब पूरे ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी के अंदर हमारी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है इजीली. तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन, लाइसोजाइम, हेयर एंड स्पाइडर वेब और इंसुलिन, ये जो चार हैं, चारों की चारों एक एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किए एक एक स्ट्रक्चर किए. तो लेट मी रिपीट वंस अगेन. प्राइमरी स्ट्रक्चर हम कहते हैं द लीनियर सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं द स्पाइरली कॉइल्ड, द स्पाइरली स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. टर्शरी स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली जो चेन है वो मजीद फोल्ड हुई हुई हो अच्छे से, उसको हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर. एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हम बोलेंगे जब एक से ज्यादा लाइक 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कंबाइन होती हैं तो तब वो जाकर एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाती हैं. नेक्स्ट. Okay, here you can see the easiest way of learning. There is a diagram, colorful diagram that is showing the 4 basic structures of protein. You can say you can see that primary structure is a linear sequence of amino acids. The secondary structure is spirally coiled. As I told you कि ये spirally coiled होंगे. The third one is tertiary structure. Tertiary structure में क्या होगा? ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली चेन है इसी यही मजीद अगर फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होके और 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर. और द लास्ट वन इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. उसमें अगर आप देखो डिफरेंट कलर्स यहाँ पर क्यों मेंशन किए गए इस मॉलिक्यूल में,
डिफरेंट कलर्स को मेंशन करने का मकसद ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है। लाइक ये पर्पल है, ये लाइट ग्रीन है, पैरेट ग्रीन, ये लाइट पर्पल है, ये ब्लू है, जो भी है ये डिफरेंट कलर्स यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं और एक नेटवर्क और गुच्छे की शक्ल में आई कैन से कि अगर पाई जाती हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं प्रोटीन का। तो दीज फोर आर द बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट, all right, so now we have the topic that is about the functions of protein. So basically proteins, as I already told you कि protein जो है हमारी body में बहुत सारे variety of functions perform कर रहा है। तो एक अहम किरदार अदा करता है प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर, और हमारा एक बेसिक मॉलिक्यूल है जो कि हमें हमारी डाइट के अंदर मेजरली फॉर्म में चाहिए होता है। हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड होती है फॉर सर्वाइवल, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में काफी सारी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। सो प्रोटीन के वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट हियर आई हैव शोड सम ऑफ द बेसिक आई कैन से फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से होते हैं? ये जो प्रोटीन है, दीज प्रोटीन्स आर फिब्रस प्रोटीन्स दैट आर टफ एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। स्ट्रक्चरल प्रोटीन किनको कहते हैं? बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो फिब्रस प्रोटीन है, लाइक धागेनुमा एक प्रोटीन्स है जो बहुत टफ होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल, आई मीन टू से वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, टेंडन्स, कार्टिलेजेस, नेल्स, हेयर्स एंड थॉर्न्स। ये वाले जो प्रोटीन है, लाइक स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये बहुत सारी चीजों का स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं या बहुत सारी चीजों में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी कि बहुत हमारे जो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे बोन्स हो गया, टेंडन्स हो गया, कार्टिलेजेस हो गई हैं, नेल्स, हेयर्स, ये सारी हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में चीजें पाई जाती है। इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर कोलाजन, इलास्टिन एंड केराटिन। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पर तीन मेंशन है, कोलाजन, इलास्टिन, केराटिन। ये तीनों के तीनों हमारी बोन्स में, वी कैन से ये जो कोलाजन प्रोटीन है ये हमारी बोन्स में और कार्टिलेजेस में पाया जाता है। बोन्स एंड कार्टिलेजेस किसको कहते हैं? बोन्स आपको पता है हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमारी पूरी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा है, जबकि जो कार्टिलेजेस है वो हम आम जबान में नरम हड्डी को कह सकते हैं, जो कि इतनी ज्यादा हार्ड नहीं हो, फ्लेक्सिबल हो। तो टफ होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है। तो ये जो बोन्स हैं, ये जो कार्टिलेजेस हैं, जो मिलकर हमारे कंप्लीट स्केलेटन बनाते हैं, इनके अंदर कोलाजन प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो यहाँ पर एक और चीज मेंशन है, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन पाया जाता है हमारे हेयर्स में, हमारे बालों के अंदर, और कमर्शियली भी अगर देखा जाए तो शैम्पूज के अंदर केराटिन प्रोटीन लिखा हुआ होता है इंग्रेडिएंट्स में कि केराटिन प्रोटीन इसमें एडिड है, क्योंकि हमारी बालों की बेसिक नीड है केराटिन प्रोटीन। तो ये सारी प्रोटीन्स जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और कहाँ पाए जाते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द सेकंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन एक्ट्स एज एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? बेसिकली ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं बेसिकली, और इसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं एंजाइम्स को हम। क्यों? इसको कैटलिस्ट फॉर्म जो है या कैटलिस्ट जो वर्ड है एंजाइम्स के लिए किस वजह से यूज की गई है? बिकॉज एंजाइम्स वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, एंजाइम्स वर्क्स इन अ कैटलाइजिंग फंक्शन, कि किसी भी अगर रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर या कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके अंदर एंजाइम्स का क्या काम है? उस फंक्शन को कैटलाइज करवाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसका बेसिक काम क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके और फंक्शन जो है ना या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं? बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं लाइक किसी भी काम को होने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होती है। ये तो हमें एक कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी काम हो रहा है या किसी भी काम को करवाने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए, तब जाके वो काम स्टार्ट होगा। तो एंजाइम्स का काम क्या है? अगर हमारी बॉडी में कोई मॉलिक्यूल है लार्ज है, तो तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। अब बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी में किसी भी कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा वो रिएक्शन आएगा नहीं होगा। तो एंजाइम्स का क्या काम है? एंजाइम्स क्या करेंगे? उस रिएक्शन को कम एनर्जी में, लाइक हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है कि हम इतना बड़ा मॉलिक्यूल हमारी बॉडी तोड़ सके, लेकिन थोड़ी बहुत है, लेकिन वो रिएक्शन तो नहीं होगा बिकॉज
सप्लाई नहीं है अच्छी एनर्जी की, तो इंजाइम्स क्या करेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, लाइक वो एनर्जी जो हमारे रिएक्शन को शुरुआत करवाएगी, उस एनर्जी को लो डाउन कर देगा, कम एनर्जी के अंदर रिएक्शन को स्टार्ट करवा देगा, रिएक्शन स्टार्ट भी हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, लाइक बहुत स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को, कि रिएक्शन कम टाइम में और कम एनर्जी के अंदर इजीली हो सके। तो ये बेसिक काम है इंजाइम्स का। तो इंजाइम्स जो है वो बेसिकली प्रोटीनियस होते हैं इन नेचर के अंदर, नेचर वाइज हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है एंजाइम्स में, ग्लोब्यूल प्रोटीन। तो एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीनियस भी होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज भी एक एंजाइम है, लाइसोजाइम भी है, इंट्रोजिनेज है, लाइपेज है, ये सारे एंजाइम्स हम चैप्टर नंबर 3 में हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे। सो दीज टू आर द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, के फंक्शंस प्रोटीन किस तरीके से काम कर रहा है। सो फर्दर मोर लेट अस डिस्कस, let us move to the third function. Next. Okay. So we have there three another functions of protein. Number 1 is hormone. Number 4 is respiratory pigments. Number 5 is transport protein. So let us first discuss about the hormones. What are hormones? These are the long polypeptides composed of long chains of linked amino acids. Hormones हम basically किसको कहते हैं, जब long polypeptide chain अमाइनो एसिड्स की कंबाइन होती है तो हार्मोन्स बनाती हैं बेसिकली। हार्मोन्स बॉडी में किस चीज का काम करते हैं, हार्मोन्स रेगुलेशन का काम करते हैं। नाउ व्हाट इज रेगुलेशन? रेगुलेशन हम कहते हैं मेंटेनेंस को हमारी बॉडी में, लाइक अगर किसी भी चीज की मेंटेनेंस हो रही है, लाइक टेम्परेचर का मेंटेन होना, वाटर का मेंटेन होना, इन सारी चीजों को हम रेगुलेशन कह सकते हैं। रेगुलेशन आप सिंपली कह सकते हो, रेगुलेशन एक टर्म है जो मेंटेन लॉस के इंस्टीड या उसके आई मीन टू से कि उसकी रिप्लेसमेंट इस्तेमाल किया जाता है, रेगुलेटिंग। तो इन हार्मोन्स बेसिकली क्या काम करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं। हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको रेगुलेट करते हैं, आई मीन उनको मेंटेन करते हैं। कौन सा प्रोसेस कितना होना चाहिए, कौन सी चीज कितनी बढ़नी चाहिए, कौन सी चीज कितनी रुक जानी चाहिए, ये सारे बढ़ने और रुकने के काम, यानी तमाम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में कौन मेंटेन कर रहा है, ये हार्मोन्स मेंटेन कर। हार्मोन्स किन किन फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, बेसिकली रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस हो गया, स्लिप हो गया, XYZ कोई भी हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हमारी बॉडी का, इंटरनल फंक्शंस लाइक हमारा सोना, रिप्रोडक्शन हो गई, ग्रोथ हो गई है, किसी चीज का बैलेंस होना हो गया, और बॉडी में डिफरेंट काम लाइक हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना हो गया, हमारे ग्रोथ का बढ़ना हो गया, ग्रोथ का छोटा रहना हो गया, या ये सारे के सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं बेसिक। तो देयर आर सम एग्जांपल्स दैट इज शोइंग दैट okay, these are the growth hormones. We have there GH and follicle stimulating hormone. GH हार्मोन हम कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन्स को, जो ग्रोथ करवाता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक हार्मोन है जो रिप्रोडक्टिव साइकिल में इस्तेमाल होता है फीमेल्स के। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो है ना मेन प्रोसीजर उसी के अंदर बेसिकली है कि वो फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल्स क्या है वो हम इंशाल्लाह डिटेल फर्दर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। सो आज बस हम इतना ही डिस्कस करते हैं कि हार्मोन्स बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो किसी ना किसी चीज को मेंटेन कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को मेंटेन कर रहे हैं। कौन से हार्मोन्स हैं, ऑलरेडी यहाँ पर 2 एग्जांपल्स मेंशन्ड है। Now the 4 functions of protein is respiratory pigments. Respiratory pigments, okay. These are the globule protein pigments that are usually soluble in water. हमारी जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं ये भी प्रोटीन्स हैं। कौन से प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन पिगमेंट्स हैं बेसिकली जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। Examples include myoglobin, which provide oxygen to the working muscles, and hemoglobin, which transfers blood to all the tissues and organs through the blood. All right. So basically मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। कहाँ पर, वर्किंग मसल्स में। आपको पता है हमारी पूरी की पूरी मूवमेंट बॉडी की किस चीज पर डिपेंड कर रही है, मसल्स पर डिपेंड कर रही है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देन रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कंप्लीट मूवमेंट करती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी
कि पूरी मूवमेंट डिपेंड करती है मसल्स पर, कि मसल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मसल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई होना बहुत जरूरी है, हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का होना भी बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन को सप्लाई करना मसल्स में, ये काम है मायोग्लोबिन प्रोटीन का। इसके अलावा हीमोग्लोबिन प्रोटीन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है थ्रू आउट द ब्लड या थ्रू आउट द बॉडी। So number fifth function is transport protein. Transport protein basically कौन से होते हैं? These are structural component of the cell membrane. Transport नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो वर्ड है ट्रांसपोर्ट वो मेंशन कर रहा है कि कोई ऐसा प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन हम कहते हैं किसी चीज का इन यानी कि अंदर या बाहर चले जाना या कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होना, सिंपली आप लफ्जों में कह सकते हो, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेजरली कंपोनेंट है किसके? सेल मेम्ब्रेन के। अब नाउ व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन आप सबको कॉमनली पता है, सेल्स के ऊपर पाए जाने वाली जो बेसिक बाउंड्री होती है जिसमें से सेल के अंदर चीजें आती है और सेल से चीजें जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाली जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। They form channels in the plasma protein to transfer selective molecules inside the cells. Simply क्या होता है, जब एक कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन को हम डिटेल पढ़ेंगे तो आप उसमें देखोगे कि कुछ प्रोटीन के चैनल्स लगे हुए हैं। प्रोटीन की जो है ना सिंपल सी दो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स जा रही हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिनके अंदर एक पत्थर नुमा आप कह सकते हो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स वहां क्यों लगे हुए हैं, उनका क्या काम है? काम उनका सिंपली ये है कि वो एक चैनल है। चैनल किस तरीके से, लाइक सेल के अंदर से किसी चीज को अगर बाहर जाना है सेल के, और सेल के बाहर से किसी चीज को अंदर आना है, तो वो आना और जाना होगा उन मॉलिक्यूल्स का, वो उस चैनल के थ्रू होगा। कौन सा चैनल? जो प्रोटीन के जो दो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं उनके, उनको हम चैनल यहाँ पर कह रहे हैं कि वो चैनल ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करवाते हैं इधर से उधर। So some of them also form component of blood and lymph in animal. Examples of transport proteins are serum albumin that transfer hemin and fatty acids, channel protein and carriers. तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बहुत किस्म के होते हैं, लाइक सीरम एल्बुमिन है जिसका काम क्या है, फैटी एसिड्स को इधर उधर से ट्रांसफर करना। इसके अलावा चैनल प्रोटीन है जो कि चैनल के तौर पे काम कर रहे हैं। चैनल हम कह सकते हैं पैसेज वे, किसी चीज के आने जाने का रास्ता सिंपली। और कैरियर प्रोटीन है जो कि और मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं। तो ये वो वाले प्रोटीन है जो बेसिकली काम सबका एक ही है, किसी ना किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं सब, लेकिन अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट, ऑल राइट, सो नंबर 6 प्रोटीन इज मोटर प्रोटीन। मोटर प्रोटीन जो है वो मैं कह सकती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मसल्स हमारे वो बेसिक एक चीज है हमारी बॉडी की जो कि मूवमेंट कॉज करती है, यानी मूवमेंट करती है। अब एक कॉमन सी बात है कि कोई भी एनिमल होगा, लाइक अगर बेशक वो प्लांट्स हो, प्लांट्स में तो मसल्स नहीं होते लेकिन एनिमल्स में तो है। तो हमारी मूवमेंट करवाने वाला जो बेसिक चीज है वो मसल्स है। मसल्स करते क्या है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमारे मसल्स कब होते हैं और रिलैक्स कब होते हैं? जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, किसी चीज को अगर हम उठा रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज मूवमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर मसल्स दो फंक्शन कर रहा है। देन नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्शन एंड द अनदर वन इज रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों मसल्स के फंक्शंस हैं जो कि मसल्स को मूवमेंट करवाते हैं। तो ये जो मोटर प्रोटीन्स हैं ये मसल्स में पाए जाते हैं, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाते हैं। इन प्रोटीन्स में आते हैं एक्टिन, मायोसिन, काइनेसिन एंड डाइनिन। ये चार ऐसे प्रोटीन्स हैं जो मसल्स प्रोटीन आप कह सकते हो कि मसल्स में पाए जाते हैं और मसल्स मूवमेंट करवाने के काम आते हैं। So these 6 were the proteins that that acts in the body as different functions. तो यहाँ पर अगर हम देखें इन मेन फंक्शंस के अलावा बॉडी में प्रोटीन के और डिफरेंट फंक्शंस भी हैं। यहाँ पर एक चार्ट है जो कि मेंशन हो रही है, यू कैन सी कि सबसे पहला जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब एंजाइम्स का काम क्या है? बेसिकली मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनियस होते हैं, नेचर में प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनका काम क्या है, केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करना यानी बढ़ाना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इजीली डाइजेशन का काम प्रोसीजर हो रहा है। सेकेंडली अगर हम देखें एंटीबॉडीज सपोर्ट इम्यून फंक्शन। बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं जो प्रोटीन की बनी हुई हैं
या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो एज एन एंटीबॉडीज भी काम करता है, पर एंटीबॉडीज का आपको पता काम है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं. यस्टरडे we have already discussed about some antibodies that provide a good immune system to us. So basically antibodies हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम करती हैं और एंटीबॉडीज खुद भी प्रोटीन्स की बनी हुई हैं. The another one is support muscles contraction and movement. अभी अभी हमने इस बारे में बात की कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, दोनों फंक्शंस में जो चीज इंक्लूडेड है वो प्रोटीन्स हैं. अदर देन देयर इज already we have discussed about this, the support and regulation and expression of DNA and RNA. डीएनए को सपोर्ट करना, डीएनए की रेगुलेशन और एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, लाइक डीएनए की रेप्लिकेशन करना, डीएनए को मेंटेन करना, इसके अंदर भी प्रोटीन का एक बड़ा अहम रोल होता है. अदर देन दिस वी हैव द फिफ्थ फंक्शन ऑफ प्रोटीन दैट इज प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी. आप अभी हम पीछे पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि बोन्स और कार्टिलेजेस में पाए जाते हैं. बोन्स और कार्टिलेजेस में उनका काम क्या है? बोन्स और कार्टिलेजेस दोनों को टफ बनाने का जो काम है वो कोलाजिन प्रोटीन का है, और कोलाजिन प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर आता है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाए जाते हैं हमारी हड्डियों में, हमारी कार्टिलेजेस में, जिनका काम एक ही है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना. इसके बाद आता है हार्मोन्स. अभी अभी हमने बात की कि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो हार्मोन्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं. तो अगर प्रोटीन हार्मोन्स है तो हार्मोन्स के तौर पे प्रोटीन का क्या काम होगा? वो बॉडी के कोई ना कोई फंक्शंस रेगुलेट करेगा, मतलब मेंटेन करेगा. किसी की ग्रोथ बढ़ाना, किसी की ग्रोथ छोटी रह जाती है, बॉडी के तमाम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करने वाले हार्मोन्स है, और हार्मोन्स खुद भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. The last function is move essential molecule around body. ये जो आपको यहाँ पर तरीके से अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपको रेड टैबलेट्स जैसे गोल और स्फेरिकल बॉडीज ये एक तरीके से नजर आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन को. और हीमोग्लोबिन प्रोटीन मैंने आपको बताया एक पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी. सो ये जो है ना, ये बेसिक फंक्शंस हम कह सकते हैं जो कि सिंपली भी हमें एक तरीके से याद होने चाहिए कि ये काम प्रोटीन कर रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है हमारे बॉडी में, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन भी कर रहा है, एज वेल एज हमें इम्यून सिस्टम बेहतर कर रहा है, हमारे रिएक्शंस करवा रहा है, हमें हमारी मूवमेंट करवा रहा है, डाइजेशन करवा रहा है, और व्हाट नॉट. हर काम, हर मेन काम जो है ना उसके अंदर प्रोटीन इंक्लूडेड है. That is why we can say that protein is a rich source of energy that our body need in the diet. At least a day में एक बार हमें जो है ना एग लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? अंडा क्योंकि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है. अंडे के अंदर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन पाई जाती है जो कि हमारी पूरी बॉडी को प्रोटीन सप्लाई करती है. एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो प्रोटीन आपको हर चीज में मिलेगा, हर डिफरेंट चीज में, लाइक दालों में प्रोटीन है, थोड़े मिल्क में प्रोटीन है, नट्स वगैरह में कुछ ना कुछ प्रोटीन्स हैं, एग्स में प्रोटीन है, फिश, यस, फिश इज वन ऑफ द मोस्ट रिच प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. फिशेस के अंदर प्रोटीन हद से ज्यादा पाया जाता है. तो ये सारी हमारी बेसिक डाइट है जो हम डे में कम से कम लेते हैं. तो डे के अंदर, एक दिन के अंदर हम किसी ना किसी चीज को जब भी अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से हमें कोई ना कोई सोर्स प्रोटीन की मिलती है. तो जितने ज्यादा हम प्रोटीन गेन करेंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी को उससे ज्यादा फायदा होगा, और जितना ज्यादा प्रोटीन की हमारी बॉडी में कमी होती जाएगी तो ये जितने भी अभी हमने फंक्शंस पढ़े हैं सबके अंदर कमी होती जाएगी. लाइक अगर हमारी बॉडी में कैरेटिन प्रोटीन की कमी हो गई है तो हमारे हेयर फॉल होगा, हमारे हेयर्स गिरेंगे, और इसके अलावा हेयर्स थिन हो जाएंगे क्योंकि कैरेटिन प्रोटीन जो है ना वो बेसिकली हमारे हेयर्स में पाया जा रहा है. इसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन, लाइक अगर हम मिल्क वगैरह नहीं पियेंगे तो हमारे अंदर बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी. तो प्रोटीन की इंटेक हमारे लिए उतनी ही जरूरी है क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस कर रहा है, बहुत सारी चीजों को मेंटेन कर रहा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन दैट वी हैव डिस्कस्ड. Today is the topic that is about the biological molecules. हमने देखा कि biological molecules क्या हैं, उनके अंदर कितने elements हैं, how they formed, what are polymers, what are monomers,
what are organic molecules, what are the simplest units of simplest biomolecules, what are the complex macromolecule, what is the procedure of condensation, hydrolysis, what are proteins, protein के functions देखे, structures देखे, protein क्या है, किसने इसको name दिया, this all that we have discussed today. uh, that I think that is enough for today. I hope you all have a good day. And I think you got this lecture. I wish this lecture would be helpful for you. If you have any queries or anything that you have that you want to ask me, so you can comment down there. We will definitely respond you because we are here for you all. So your cooperation would be definitely appreciated. If you have any confusion regarding this topic or the previous topic, so you may definitely free to ask. You can ask anything in the comment section. Definitely we will respond. I hope this will be good for you. This will increase your knowledge. Other than this, if you want it, if you want to give me some suggestions, some good suggestions that we can add to our ppts, that we can add to enhance the lectures, so must share with me. I will be thankful to you. Remaining part of the topic, the rest of the part would be discussed tomorrow inshallah in the next lecture of biological molecules. तो आज के लिए बस इतना काफी है. I hope you all got it. So take care. Thank you for listening me. Allah Hafiz.